ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بڑی پیشرفت، FIA نے عمران خان سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان پر فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام۔ سردار اظہر طارق، سینیٹر سیف اللہ نیازی، سید یونس، عامر کیانی، طارق شیخ، طارق شفیع بھی مقدمے میں نامزد۔ ملزمان نجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں۔ نجی بینک کا مینیجر بھی مقدمے میں شامل۔ FIR کے مطابق نیا پاکستان کے نام پر بینک اکاؤنٹ بنایا گیا۔ بینک مینیجر نے غیر قانونی بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازت دی۔ ابراج گروپ آف کمپنی سے $21 لاکھ آئے۔ تحریک انصاف نے عارف نقوی کا الیکشن کمیشن میں جھوٹا اور جعلی بیان حلفی جمع کرایا۔ ووٹن کرکٹ کلب سے مزید 2 اکاؤنٹس میں رقم موصول ہوئی۔ نجی بینک کے سربراہ نے مشتبہ غیر قانونی تفصیلات میں مدد کی۔ سارے چور جمع ہو کر کسی نہ کسی طرح مجھے عوام کی نظروں میں گندا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے گندی ویڈیوز اور آڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ آپ نے جتنا گند اچھالنا ہے اور گٹر میں اتر کر اپنی قوم کی اخلاقیات تباہ کرنی ہے کر لیں، اب کچھ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ چیئرمین PTI عمران خان کی ننکانہ صاحب میں للکار، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے، آڈیو لیکس کے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم آفس کی محفوظ لائن کو کس نے ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا؟ عدالت میں پتہ چلاؤں گا۔ کون سی ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں؟ ہماری حکومت بیرونی سازش کے تحت گرائی گئی۔ انہوں نے پہلے سائفر ماننے سے انکار کیا، پھر کمیشن بنا دیا۔ راستے پر کمیشن وہ بنے گا جو آزاد ہو۔ کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ تو اس کا حصہ تھے۔ مزید کہا، نواز شریف اور مریم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا مگر سچ باہر آ گیا۔ انکشاف ہوا ہے کہ لندن فلیٹ مریم نواز کے ہیں۔ عمران خان کے خلاف ٹھوس ثبوت مل چکے، احتساب سے بچ نہیں سکتے۔ اس نے خیرات چندے کے پیسے سے سیاسی جماعت بنائی اور اشتہارات پر پیسہ لگایا۔ FIA کے پاس فارن فنڈنگ کیس میں ناقابل تردید ثبوت آ چکے۔ اسلام آباد پر عمران خان کی لشکر کشی کا مقصد احتساب سے بچنا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی GNN سے گفتگو، کہتے ہیں پاکستان کو 16ویں 17ویں صدی کی سلطنت نہیں کہ یہ دارالخلافہ پر لشکر کشی کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے عمران خان پر لفظی حملے، کہتی ہیں عمران نیازی کی شخصیت جھوٹ پر مبنی ہے۔ صدر مملکت نے بھی اسے جھوٹا قرار دے دیا۔ آڈیو لیکس کے بعد سازش کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ عارف الوی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ وقت ان کے عدالت جانے کا نہیں، جیل جانے کا ہے۔ صدر مملکت کی اپنے گزشتہ روز کے انٹرویو کی تردید، کہتے ہیں انٹرویو میں سائفر سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیانات کو پیش کرنا پہلے سے ہی تقسیم شدہ ماحول میں مزید خلیج کا باعث بنتا ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ سازش کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ معاملہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ خط پہ سپریم کورٹ سے معاملے کی مکمل انکوائری کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس کو خط لکھنے سے لے کر اب تک میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ توشہ خانہ سے گاڑیاں کیوں لیں؟ PTI نے اسپیکر قومی اسمبلی کو آصف زرداری کی نااہلی کا ریفرنس جمع کروا دیا۔ زلفی بخاری کہتے ہیں سابق صدر نے نایاب گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدی، اس کے لیے رولز میں ترمیم کی گئی۔ پتہ نہیں کہ گاڑیوں کے پیسے دیے تھے یا نہیں، پیسوں کی ٹریل کیا تھی اس کا بھی نہیں پتا، یہ سب غیر قانونی تھا۔ عمران خان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور خود توشہ خانہ سے گاڑیاں لے لیں اور کسی نے یہ معاملہ بھی نہیں اٹھایا۔ افتخار درانی نے کہا کہ ملک پر مافیا مسلط ہے۔ مفرور شخص کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ ہماری جدوجہد عوام کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ ضمنی اور بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی حکومتی درخواست مسترد۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان، کراچی ڈویژن میں بھی بلدیاتی الیکشن شیڈول کے مطابق کرانے کا فیصلہ۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر NA 45 کرم کا ضمنی الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سیکرٹری داخلہ، دفاع، چیف سیکرٹری، CIGs نے ضمنی انتخابات سے متعلق اپنی رائے دی۔ پنجاب کی سیاست میں ہلچل، وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو پیش کر دیا۔ کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتا، پارٹی کے ادنا کارکن کے طور پر کام کرتا رہوں گا۔ ان کے پاس وزیر جیل خانہ جات پنجاب کا بھی قلمدان تھا۔
कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर पीपी 177 कसूर 4 से 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे। उधर नए वजीर दाखिला पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत, राजा बशारत, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल के नामों पर गौर। वफाकी काबीना ने पीटीआई का मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 41 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरका को लॉन्ग मार्च पर वजीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। उधर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत आला सतह का इजलास। बोले, किसी जमात या गिरोह को वफाक पर हमलावर होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत को किसी गिरोह या मुसल्लह जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। वफाक और इसकी इकाइयाँ मिलकर ऐसे गैर आइनी इक़दामात को रोकने की पेशबंदी करेंगी। वज़ीर दाखिला की चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज को वफाक मुखालिफ किसी इक़दाम का हिस्सा न बनने की हिदायत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई के किसी इक़दाम या मंसूबे का हिस्सा न बने। किसी भी जारहियत के खिलाफ रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सरकारी मुलाजिमीन का फरीज़ा है। अवाम बदतरीन महंगाई की लपेट में है और हुकूमत ने एहतजाज को चलने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। निहत्ते अवाम पर तशद्दुद के लिए 41 करोड़ का बजट मंजूर। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। शेरी मजारी ने कहा, अब हमें समझ आई कि लंदन में मौजूद इश्तिहारी और उसकी बेटी डार को मईशत पर क्यों बिठाना चाहते थे। कौमी वसाइल की लूट मार के सिलसिले का फिर से आगाज हो चुका है। तहरीक इंसाफ का मार्च तो बहाना है। हमें पता है कि ये 41 करोड़ कहाँ जाएंगे। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। DGISPR समेत 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान ज़करिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर शामिल, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नजीर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स बन गए। क्या नैब तरामीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या तरामीम मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए की गई? अरबों के करप्शन के 280 केसेस पहले ही वापस हो चुके हैं। क्या आप पार्लियामान से बदनीयती मंसूब कर रहे हैं? FATF ने भी हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदही की। नैब तरामीम से मुताल्लिक़ समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने करार दिया कि नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हैं। नैब तरामीम में कुछ चीज़ें भी हैं जिनसे फ़ायदा हुआ। ये सब वो निकात हैं जो सियासी नौयत के हैं और पार्लियामान ने तय करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 से लेकर अब तक तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के सहारे लोग वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाते हैं मगर यहां पेश नहीं होते। बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग इलेक्शन कमीशन को छोटी सी अदालत समझते हैं। मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब किया था, क्यों ना हम वारंट जारी कर दें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के पेश न होने पर कमीशन का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ असद उमर के हवाले से हतमी फैसला करने से रोका है। हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 6 माह पहले किसको मालूम था कि इमरान खान फर्श और नवाज शरीफ अर्श पर होंगे। पाकिस्तान में कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के पास लंदन पहुंच गई। वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठे हमारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च वाले दिन इस्लामाबाद के गिर्द हिसार बनाना है। अगर वो हिसार एक कैद खाना बन गया तो आप लोगों के माल से भरे कंटेनर्स खड़े कर रहे हैं। 10-10 कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दें। मगर राना साहब, कंटेनर्स के बगैर भी कोई अथॉरिटी होती है। एतजाज अहसन का बयान बुग़्ज़ को जाहिर करता है। अदलिया बयान का सो मोटू नोटिस लें। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का रद्द अमल। बोले, आपने बुग़्ज़ का इजहार हर दौर में किया लेकिन आज तो हद हो गई। शरीफ फैमिली को रिलीफ अदालतों की तरफ से मिला। एतजाज अहसन का बयान अदालती सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। शहजाद अकबर और इनकी हुकूमत झूठे मुकदमात में अदालतों में बुलाते थे।
हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। एतजाज अहसन का रवैया शरीफ फैमिली के साथ गैर मुनसिफाना है, उन्हें मुतअद्दिद बार नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है उन्हें नोटिस पर तलब करें। डॉलर की मुसलसल पसपाई जारी, रुपया दिन ब दिन मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 217 रुपए 79 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 217 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 219 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 220 रुपए पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान, फिर उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स 42,100 की सतह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। पाकिस्तान की साइड लाइन्स पर IMF और वर्ल्ड बैंक से अहदाफ पर नज़रसानी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त मुतवक्के। रवा माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाएगी। बजट और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ, तौसी फंड सहूलत से मुंसलिक शराइत नरम करने पर बात की जाएगी। पेट्रोलियम लीवी और बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुंजमद करने पर भी IMF हुकाम से बातचीत मुतवक्के है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ने का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF की रवा माली साल माशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग और बरतानवी हाई कमिश्नर की अलग अलग मुलाकात। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मुबनी हैं। दोनों कौमें अमन व इस्तेहकाम और उम्मत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करती रहेंगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान इलाकाई मामलात में बरतानिया के मुतवाज़िन किरदार को कदर की निगाह से देखता है। हम मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाहां हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश पाकिस्तान पहुंच गई। वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची। मलाला का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा, लड़कियों की तालीम के फरोग पर इजहार ख्याल। मलाला यूसुफजई दादू समेत सूबे के दीगर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब से होने वाले नुकसानात, बहाली के कामों का जायजा लेंगी। मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते रहें, हम अवाम की खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हमारी हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। 100 अरब रुपए से पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत 80 लाख मुस्तहक़ खानदानों को सस्ती अशिया ख़ुरनोश मिल रही हैं। एहसास प्रोग्राम हमारे लीडर इमरान खान का विजन है। कौमी सेहत कार्ड हमारी हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम में से एक है।